everyone, this is Vikas Kumar. Welcome to Basics Electricals and Marine Electrical Technology. This is our third lectures on transformer. Last lectures we were already discussed about what is transformer, what is the basics definitions of transformer, types of transformer, what is step up transformer, what is step down transformer, applications of step up and step down transformer on board ships. Okay, and last lectures we were also discussed about the whole working principle of transformer, how AC frequency or AC, we can say electrical energy is fed into the transformer, and how that alternating wave is create magnetic flux, and how that magnetic flux linked with the number of coil and induced EMF inside the transformer. Okay, so basically in this lectures we will going to deal with losses of transformer. What are the different losses of transformer? Because this lectures is very much important for electrical technical officers, or we can say training ETOs, or we can say those ETO aspirants who are preparing for their ETOs exams. Okay, because in ETO interviews, your interviewer or surveyor may ask you such questions like, what is losses in transformer, what is variable losses, what is constant losses, why your iron ore and or we can say that core losses is constant losses, why your copper losses is variable losses. So in this lecture we will going to deal with all type of losses, what is core losses, what is copper losses, and different types of iron ore losses and different types of copper losses. Okay, so first of all, losses of transformer. So first of all, जो हमारी ट्रांसफार्मर में लॉसेस होती है, टू टाइप्स की होती है. देयर आर टू टाइप्स ऑफ लॉसेस. फर्स्ट वन इज लॉसेस, फर्स्ट वन इज आयरन और कोर लॉस. फर्स्ट वन इज आयरन और कोर लॉस. सेकेंड वन इज कॉपर लॉस. आयरन और कोर लॉस विच इज ऑल्सो कॉल्ड कांस्टेंट लॉस. कॉपर लॉस विच इज ऑल्सो कॉल्ड वेरिएबल लॉस. Now, question is which is mostly asked by interviewer or surveyor is why iron or core loss is constant loss and why copper loss is variable loss. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर हम डिस्कस करेंगे. Now, iron or core loss is again divided into two categories. That is, first one is your ED current loss. Second one is hysteresis loss. Now, variable loss, or we can say copper loss, is again classified into two types. That is primary loss, or we can say primary winding loss. Second one is secondary winding loss. Now, there are three most important components present in transformer. First one is, this is what called your transformer core, or we can say which is made up of soft iron core. Second one is primary winding and third one is secondary winding. Okay, now again, what are the characteristics of that your transformer core? Transformer core is again, it provide low reluctance and high relative permeability. Reasons क्या था, सारी चीजें हम लास्ट लेक्चर्स में डिस्कस कर लिए. अगर आपने लास्ट लेक्चर्स नहीं करा तो प्लीज आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए एंड लास्ट लेक्चर्स देख लीजिए. ओके, क्लियर है इतना. नाउ, तो हमारी ट्रांसफार्मर में थ्री इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है, प्राइमरी वाइंडिंग, सेकेंडरी वाइंडिंग एंड आवर ट्रांसफार्मर कोर, वी कैन से योर सॉफ्ट आयरन. ओके, नाउ सबसे पहले हम बात करेंगे आयरन एंड कोर लॉस. आयरन और कोर लॉसेस पे बात करेंगे. ओके, नाउ अगेन कम टू बेसिक्स. हम लोग जो ट्रांसफार्मर में जो हमारी इनपुट होती है वो हमारी एसी इनपुट होती है. ओके, एग्री. व्हाई एसी इनपुट, व्हाई अल्टरनेटिंग वेव, ओके, व्हाई इलेक्ट्रिकल एनर्जी वेरिंग विद टाइम, सारी चीजें मैंने डिस्कस किया है लास्ट लेक्चर्स में. ओके, तो हमारी एसी इनपुट्स हम लोगों ने फीड किया. अगर हमारी अल्टरनेटिंग करंट अगर हम लोग फीड कर रहे हैं, उसकी कुछ फ्रीक्वेंसी होगी. मींस अगर मैं बोलूं इसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, मींस दैट ये हमारी साइकिल हो रही है, मींस नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकेंड, मींस 1 सेकेंड में इतनी 50 साइकिल्स हमारी ट्रेवल कर रही है. दैट इज द मीनिंग ऑफ 50 हर्ट्ज. ओके, तो हम लोगों ने इनपुट में क्या सप्लाई किया, एसी. ओके, दैट इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी वेरिंग विद टाइम, अल्टरनेटिंग करंट. ओके, नाउ अब हमारी अल्टरनेटिंग करंट हमारी सप्लाई हो चुकी है. नाउ सो बिकॉज ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, यहां पर हमारी मैग्नेटिक फ्लक्स क्रिएट होगी. ओके, एंड नाउ अगेन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद number of conductor, hence EMF is induced at the iron core.
ओके हमारी आयरन कोर में हमारी इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगी. So because of induced EMF, again there is one short circulating current is formed in the iron ore, and that short circulating current is called ED current. वही हमारी ED current होती है, and because of some power is losses due to that ED current is called your ED loss. Clear? ED loss clear हो गया. हम लोगों ने AC सप्लाई किया, AC सप्लाई किया तो हमारी मैग्नेटिक फ्लक्स क्रिएट हुई. So because of magnetic flux as per Faraday law of electromagnetic inductions, okay, यहाँ पर हमारी EMF इंड्यूस्ड होगी आयरन ओर में. So इंड्यूस्ड EMF के चलते हमारी एक शॉर्ट सर्कुलेटिंग करंट प्रोड्यूस्ड होगी, एंड शॉर्ट सर्कुलेटिंग करंट हमारी क्या होती है, ईडी करंट होती है, एंड द पावर लॉस ड्यू टू दैट ईडी करंट इज व्हाट कॉल्ड ईडी करंट लॉस. क्लियर हो गया. नाउ सेकंड, व्हाट इज हिस्टेरिसिस लॉस? नाउ अगेन both ED current and hysteresis loss occur at our transformer core. हमेशा याद रखना है बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स. इंटरव्यू में आपको बेसिक्स क्वेश्चन पूछेंगे, आप जैसे ही बोलोगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ लॉसेस मींस व्हाट इज कांस्टेंट लॉसेस एंड कांस्टेंट लॉसेस अगेन कैटेगराइज इनटू आवर ईडी करंट लॉस एंड हिस्टेरिसिस लॉस. इंटरव्यू आपको अगेन पूछेगा जो हमारी हिस्टेरिसिस लॉस एंड आयरन और ईडी करंट लॉसेस जो होती है वो हमारी कहां होती है. ओके कहां आकर होती है हमारी, अगेन ये हमारी ट्रांसफार्मर कोर में होती है, और वी कैन से दैट मैग्नेटिक कोर, और वी कैन से सॉफ्ट आयरन पे हमारी लॉसेस होती है, जहां पर हमारी फ्लक्स होती है, जहां पर हमारी फ्लक्स ट्रैवल कर रही है वहां पर हमारी ईडी करंट लॉस एंड हिस्टेरिसिस लॉस होती है. ओके फ्लक्स की पाथ क्या होती है, इंटेंडेंट पाथ क्या होती है, हमारी ट्रांसफार्मर कोर के थ्रू फ्लक्स ट्रैवल करती है. लास्ट लेक्चर में आपको बताया था. वहीं पर हमारी ईडी करंट लॉस एंड हिस्टेरिसिस लॉस होती है. ईडी करंट लॉस समझ में आ गया ना. व्हाट अबाउट हिस्टेरिसिस लॉस? अगेन हिस्टेरिसिस लॉस कहां होगी, अगेन ट्रांसफार्मर कोर पे होगी, मैग्नेटिक कोर या सॉफ्ट आयरन कोर पे होगी. ना अगर मैं इसकी लार्ज व्यू लूं, इस पार्ट की अगर मैं लार्ज व्यू लेता हूं, ओके लार्ज व्यू. नाउ बिफोर मैग्नेटाइजेशन मींस हम लोगों ने अभी एसी इनपुट फीड नहीं किया है. ओके हम लोगों ने सप्लाई कुछ नहीं किया है. बिफोर मैग्नेटाइजेशन हमारे यहां पर जो मैग्नेटिक स्ट्रक्चर, मोलिकुलर स्ट्रक्चर जो होगी वो हमारी रैंडम डायरेक्शंस पे होगी, और डाइपोल जो होगी हमारी रैंडम डायरेक्शंस पे होगी. लाइक ये हमारी डाइपोल है, ये आप देख रहे हो ये रैंडम डायरेक्शन पे है. व्हाट इज दिस? दिस इज आवर मैग्नेटिक मोलिकुलर स्ट्रक्चर्स, और वी कैन से डाइपोल आर इन रैंडम डायरेक्शंस. सो एज सून एज वी सप्लाई एसी टू द ट्रांसफार्मर, ओके हमारी जैसे ही हम लोगों ने एसी सप्लाई किया ट्रांसफार्मर, देन हमारी क्या हो रही है, यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट हो रही है, ड्यू टू मैग्नेटिक फ्लक्स हमारी ईएमएफ जनरेट हो रही है. ओके सो हमारी मींस पर फर्स्ट क्या हो गया, मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट हो रही है, एंड जो मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट हो रही है वो हमारी क्या है, अगेन अल्टरनेटिंग फ्लक्स है. बिकॉज हमारी इनपुट अल्टरनेटिंग है तो हमारी मैग्नेटिक फ्लक्स क्या प्रोड्यूस होगी, अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होगी. जो हमारी मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होगी हमारी अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होगी. सो जैसे ही हम लोगों ने एसी, जो भी हमारी एसी इनपुट हम लोगों ने फीड किया, तो हमारी क्या होगी, जो ट्रांसफार्मर कोर होगी वो हमारी क्या होगी, मैग्नेटाइज होगी. जो हमारी आयरन कोर होगी वो हमारी क्या होगी, मैग्नेटाइज होगी. सो हमारी अगर आयरन कोर मैग्नेटाइज होती है तो जो भी हमारी जो रैंडम मोलिकुलर मैग्नेटिक स्ट्रक्चर्स है एंड डाइपोल है वो हमारी क्या होगी, आप देख सकते हो वो हमारी एक इंटेंडेंट यूनिफॉर्म पाथ फॉलो करेगी. ओके आप देख सकते हो इंटेंडेंट पाथ फॉलो करेगी. आप देख सकते हो ये अपनी यूनिफॉर्म पोजीशंस पे आ गई है. अभी ये हमारी रैंडम पोजीशंस पे नहीं है. ओके बट स्टिल हमारी जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो हमारी अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स है. ओके मींस ये जो आप देख रहे हो इसकी डायरेक्शंस होगी, डाइपोल की डायरेक्शंस होगी, वो हाफ साइकिल के बाद अपनी डायरेक्शन चेंज करेगी. ओके द डायरेक्शंस ऑफ डाइपोल चेंजेस आफ्टर हाफ साइकिल्स ऑफ अल्टरनेटिंग फ्लक्स. कैसे? सपोज ये हमारी अल्टरनेटिंग फ्लक्स है. ओके मैं ये डायरेक्शन ले रहा हूं, पॉजिटिव डायरेक्शन. तो पॉजिटिव डायरेक्शन हमारी डाइपोल की स्ट्रक्चर्स ऐसे होगी, आप देख सकते हो, और बोल सकते हो डायरेक्शन हमारी इस डायरेक्शन में होगी. नाउ अभी हमारी नेगेटिव साइकिल जा रही है. ओके तो अभी इसकी डायरेक्शंस क्या होगी, चेंज हो जाएगी. इसकी डायरेक्शन लाइक ऐसे चेंज हो जाएगी. ओके ये डायरेक्शंस हमारी चेंज हो जाएगी, चेंज हो गई. ये डायरेक्शन अभी की डायरेक्शन हमारी चेंज हो जाएगी. सो मींस ये क्या हो रही है, डाइपोल अपनी डायरेक्शन फ्रीक्वेंटली आफ्टर हाफ साइकिल के बाद चेंज कर रही है. ओके पॉजिटिव साइकिल जा रही है तो इसकी डायरेक्शन ऐसे है, नेगेटिव साइकिल जा रही है तो ऐसे. ये साइकिल क्या है, ये हमारी अल्टरनेटिंग फ्लक्स की साइकिल, अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स है. ये अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स
जो हमारी मैग्नेटिक फ्लक्स है अल्टरनेटिंग क्यों है? क्योंकि हमारे इनपुट एसी हम लोगों ने सप्लाई किया है। एसी हमारी क्या होती है? अल्टरनेटिंग होती है, होते हैं नहीं, हमारी फ्रीक्वेंसी होती है। व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? साइकिल्स पर सेकंड। ओके, सो दैट्स व्हाई हमारी ये क्या कर रही है? अपनी डायरेक्शंस चेंज कर रही है डाइपोल। गॉट इट? तो यहां पर इसमें क्या होगी? इसमें कुछ लॉसेस आएगी एंड दैट लॉसेस इज ओनली कॉल्ड आवर हिस्टेरिसिस लॉस। क्लियर? सो व्हाट इज ईडी करंट लॉस एंड व्हाट इज हिस्टेरिसिस लॉस? क्लियर हो गई? नाउ क्वेश्चन अगेन, इंटरव्यू क्वेश्चन, व्हाई दिस आयरन core losses is constant loss or why your ED current and hysteresis losses are constant loss? क्यों होती है constant loss? Because magnetic flux जो है हमारी आयरन कोर में और बोल सकते हैं जो ट्रांसफार्मर कोर में, वो हमारी कांस्टेंट होती है। ओके, एंड ये किस पर डिपेंड कर रही है? हमारी ईडी करंट लॉस किस पर डिपेंड कर रही है? मैग्नेटिक फ्लक्स में। हम लोगों ने इनपुट सप्लाई किया तो हमारी कुछ मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होगी, तभी तो हमारी ईएमएफ इंड्यूस्ड होगी। मींस डायरेक्टली ईडी करंट किस पर डिपेंड कर रही है? योर मैग्नेटिक फ्लक्स। एंड मैग्नेटिक फ्लक्स हमारी ट्रांसफार्मर कोर की क्या होती है? कांस्टेंट होती है। नाउ अगेन हिस्टेरिसिस लॉस। अगेन हिस्टेरिसिस लॉस कहां आकर हो रही है? हमारी अगेन हिस्टेरिसिस लॉस हमारी ट्रांसफार्मर कोर सॉफ्ट आयरन पे आकर हो रही है। एंड अगेन सॉफ्ट आयरन में क्या है? हमारी फ्लक्स ट्रैवल करती है। अगेन इट डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन हमारी फ्लक्स। सो जो हमारी फ्लक्स जो होती है ट्रांसफार्मर, वो हमारी कांस्टेंट होती है। ओके, फ्रॉम नो लोड टू फुल लोड कंडीशंस पूरी हमारी फ्लक्स कांस्टेंट होती है, मैग्नेटिक फ्लक्स। क्लियर हो गया? व्हाई इट इज कांस्टेंट? ओके, व्हाई इट इज कॉल्ड कांस्टेंट लॉस। क्लियर है ना? सेकंड, कॉपर लॉस और वी कैन से वेरिएबल लॉस। मैंने स्टार्टिंग में बताया था ट्रांसफार्मर इज मेड अप ऑफ थ्री इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज ट्रांसफार्मर कोर एंड टू वाइंडिंग्स। फर्स्ट वन इज प्राइमरी वाइंडिंग एंड सेकंड वन इज सेकेंडरी वाइंडिंग। ओके, तो अगेन हम लोगों ने ट्रांसफार्मर कोर की लॉसेस देख लिया। देयर आर टू टाइप्स ऑफ लॉस, ईडी करंट एंड हिस्टेरिसिस लॉस। नाउ व्हाट अबाउट वाइंडिंग लॉसेस? एक्चुअली दिस कॉपर losses is called winding losses, or we can say different word, winding losses is also called copper losses. Why? Because winding is made up of copper, that's why it is called copper loss. Simple. Okay, so now copper losses is variable. Why? इस पर आएंगे लास्ट में। Now again these two types, primary winding loss and secondary winding loss. ये आप देख रहे हो, ये हमारी प्राइमरी वाइंडिंग है एंड ये हमारी सेकेंडरी वाइंडिंग है। अब आप बताओ, सपोज मैं इसे यहाँ पर शो करता हूँ। ओके, तो यहाँ पर कुछ रेजिस्टेंस होगी, मैं एक यूनिट शो किया हूं, उसकी लार्ज व्यू लिया, तो ये कुछ रेजिस्टेंस है। एग्री? तो यहां पर कुछ रेजिस्टेंस है R1। सेम अगर मैं एक यूनिट लूं, ओके, तो यहां पर भी हमारी कुछ रेजिस्टेंस है R2। क्लियर? एंड ये हमारी यहां पर हमारी कुछ करंट इंड्यूस्ड होगी एज पर फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स, दैट इज I1। अगेन यहां पर भी हमारी करंट इंड्यूस्ड होगी I2. Why different currents? Why different currents? Why? Simple, no. Because current is depend on your induced EMF, and induced EMF is depend on magnetic flux linked with number of conductors. तो अगर हमारी प्राइमरी वाइंडिंग सेकेंडरी वाइंडिंग हमारी डिफरेंट नंबर ऑफ कंडक्टर्स है, ओके, तो हमारी मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद प्राइमरी वाइंडिंग और कंपेयर टू मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद सेकेंडरी वाइंडिंग और सेकेंडरी कंडक्टर्स हमारी डिफरेंट होगी, तो हमारी ईएमएफ इंड्यूस डिफरेंट होगी, सो हमारी करंट हमारी डिफरेंट होगी। तो हमारी I1 इस वाइंडिंग में जो हमारी करंट I1 होगी एंड हमारी सेकेंडरी वाइंडिंग में जो करंट I2 होगी, दोनों डिफरेंट होगी एंड इसकी कुछ रेजिस्टेंस है एंड इसकी कुछ रेजिस्टेंस है। नाउ टेल मी पावर लॉस। यहां पर कुछ हमारी वाइंडिंग लॉसेस आएगी, दैट इज I1 स्क्वायर इंटू R1 प्लस I2 स्क्वायर इंटू R2. This is our power loss, and this is summation of our primary winding loss plus secondary winding loss. It's called copper loss. Okay, why winding losses is called copper loss? Because winding is made up of copper. Okay, now why it is variable? Okay, तो इसकी रीजन सिंपल है, जो भी हमारी करंट होती है, ओके, प्राइमरी वाइंडिंग सेकेंडरी वाइंडिंग की करंट होती है, वो किस पर डिपेंड करती है? वेरिंग लोड पर डिपेंड करती है। करंट इन ट्रांसफार्मर डिपेंड्स ऑन वेरिंग लोड, दैट्स व्हाई वो लोड के अकॉर्डिंग हमारी चेंज होगी। ओके, तो दैट्स व्हाई इट इज वेरिएबल इन नेचर। ओके, आई होप ये सारी चीजें आपको क्लियर। अगर कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हो, डाउट पूछ सकते हो। एंड एज ए ईटीओ, ओके, अगर आप ईटीओ की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर्स किया, क्योंकि आपकी जो भी स्पॉन्सरशिप एग्जाम्स होती है उसमें ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लाइक व्हाई कॉपर
losses is called variable losses, why winding losses is called copper losses. Okay, and what are the different types of iron or core losses, why your iron or core losses is constant loss, what is ED loss, what is hysteresis loss, what are the different types of losses in transformer. ऐसे ऐसे मीन्स बेसिक्स पूछे जाते हैं वहां पर। आपको ऐसा नहीं है कि लाइक गेट के लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, बहुत ही बेसिक्स क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जितना मैं